हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। वेलकम टू ऑल ऑन दिस माय चैनल। सो पिछले कई दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, कुछ हम बिजी चल रहे थे पीएचडी कामों को लेकर, क्योंकि पीएचडी के कामों में कुछ व्यस्तता आ जाती है। सो इसी वजह से हम थोड़ा बिजी हो गए थे, तो वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अभी हम फिर वापस आ गए हैं, तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं और इतने दिनों से गैप रहा उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, हम माफी चाहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आज हम लेके आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिए। इससे नेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप ओशियन सर्कुलेशन को अगर समझना चाहते हैं तो इन सब चीजों को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अप वेलिंग, डाउन वेलिंग क्या होता है, विंड पैटर्न आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने थोड़ा सा बताया था ट्रेड विंड के बारे में। तो ये सारी चीजें, ओशियन के जो वाटर है वो कैसे मूव करता है, कैसे सरफेस करंट बनती है, कैसे डीप वाटर करंट, डेंसिटी ड्रिवन करंट बनती है, उन सब का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो हम बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से लेकर फिर एडवांस तक जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे से समझिए और इसको हम अभी समझाएंगे। ओके, सो नाउ टुडेज टॉपिक इज Ekman spiral, Ekman transport. So what does it mean? What's the difference between these two terms and from where this term is come into the picture? So all these things related to this topic, related to the ocean circulation of this such type of phenomena, we will discuss in this lecture. So first of all, we see from where this phenomena generate, this observation generate. So there is a scientist, Norwegian explorer. There is a Norwegian explorer name is Nansen. Nansen, he is a Norwegian explorer. He observed, and he was staying in near the coast. So suppose this is the coast and this is the iceberg and ship, which are freely flowing on the water body, this oceanic water body. So suppose this is the wind direction. So what happened because of this wind, because of fractional force, when wind flow on the oceanic body, oceanic water body, then there is some kind of force which also force to move the surface water because of the friction. So because of this frictional force, this such type of things which are freely floating on the water body always move toward the wind direction in normal condition. But what happened, what Nansen observed, he observed that these ship and iceberg which are flowing on this water body not follow the same path of the wind. He observed this iceberg and ship, there is some kind of deflection in this iceberg and ship. So in northern hemisphere, he observed these iceberg deflects. There is about 45 degree in the right direction in northern hemisphere. So these deflection toward the perpendicular of the wind direction. So from where this deflection come? What is the force which enhance this type of deflection? So because fractional force always try to carry this iceberg and ship toward the wind direction, but there is other kind of force known as Coriolis force which oppose to movement of this iceberg toward the wind direction. He deflect some kind of about 45 degree from the wind direction. तो जब नैन्सन ने ये ऑब्जर्व कर लिया कि there is some kind of deflection on the body which are flowing on the oceanic surface, so उसके बाद इसको एक्सप्लेन किसने किया? W. Ekman in 1905 में W. Ekman ने सारी चीजें बताई कि क्यों ये डिफ्लेक्शन होता है, कौन कौन से फोर्स लगते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू क्रिएट दिस डिफ्लेक्शन। तो सारा एक्सप्लेनेशन कौन दिया? एकमान ने। इसको ऑब्जर्व किसने किया? नैन्सन ने। इसके पीछे की कहानी, एक्सप्लेनेशन वो किसने बताया? एकमान ने। तो उन्होंने क्या देखा
क्या बेसिक फंडा बताया वो हम देखते हैं। तो उन्होंने देखा कि विंड जब फ्लो करेगी तो क्या होगा, विंड के कारण देयर इज अ फ्रैक्शनल फोर्स, बिकॉज ऑफ विंड रिलेटेड ड्रैग फोर्स। सो ये फ्रैक्शनल फोर्स, और अब ये फ्रैक्शनल फोर्स क्या करेगा, कोई भी बॉडी है ओशियनिक सरफेस पर उसको ट्राई करेगा टुवर्ड द विंड डायरेक्शन उसको फ्लो करने के। बट ये कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, उसको परपेंडिकुलर मूवमेंट की कोशिश करेगा। सो क्या होगा, इसके बीच में एक बैलेंस रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस को एग्जिस्ट करेगा, दैट इज 45 डिग्री, दैट इज नोन एज एकमन स्पाइरल। सो एकमन स्पाइरल क्या बताता है कि जब बैलेंस बिटवीन फ्रैक्शनल फोर्स इन द ओशियन एंड कोरियोलिस फोर्स विच ऑब्जर्व बाय द ओशियनिक करंट, सरफेस करंट, राइट। सो ये क्या बताता है, इट इज बैलेंस बिटवीन fractional force in the ocean and Coriolis force which experienced by surface current, which experienced by oceanic surface current. Okay. So, what is Ekman spiral model? Ekman spiral is balance between fractional force in the ocean and it is a balance between fractional force in the ocean and Coriolis force which are experienced by oceanic surface current. तो ये इनके बीच के बैलेंस को बताता है। So अभी हम देखेंगे कि एकमन ने कैसे अपना मॉडल बताया। तो एक चीज हम जान लें कि जो ओशियन का वाटर है दैट इज नॉट मूविंग अ सिंगल वाटर कॉलम। सपोज दिस इज द oceanic water, suppose 0 to 100 meter. So when this water is flowing in the form of oceanic current, so it does not flow a single column. So it flow a multiple layer in the form of multiple layer. So first layer मूव करेगी, उसके बाद सेकंड लेयर, उसके बाद थर्ड लेयर, उसके बाद फोर्थ लेयर। तो अब जो फ्रैक्शनल फोर्स बिकॉज ऑफ द विंड ये सरफेस लेयर को ही मिलता है, राइट। सो अब ये सरफेस लेयर क्या करेगी, इसके ऊपर फ्रैक्शनल फोर्स क्रिएट करेगी, तो ये सेकेंड वाली लेयर मूव करेगी। उसके बाद ये लेयर इसको फोर्स देगी, ये मूव करेगी, इसके बाद ये मूव करेगी। सो क्या होगा कि जैसे जैसे नीचे आएंगे तो एनर्जी कंज्यूम होती जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस कंज्यूम ऑफ एनर्जी द स्पीड ऑफ द बिलो वाटर which are flowing the deeper side of the water column is very less. So नीचे जो वेलोसिटी होगी स्लो होगी और ऊपर होगी हाई होगी। सो एकमन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो सिंगल वाटर कॉलम में वो ओशियन वाटर ना मूव करके मल्टीपल लेयर्स के फॉर्म में मूव करता है, और वो लेयर कैसे डिफ्लेक्ट होती है बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स एंड फ्रैक्शनल फोर्स, वो चीज को एक्सप्लेन किया और एक मॉडल बना दे एकमन स्पाइरल मॉडल। सो इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे से समझाएंगे हम। देखिए सपोज दिस इज द विंड डायरेक्शन एंड दिस इज द सरफेस करंट, ये 45 डिग्री। अब उसका जो एवरेज मूवमेंट होता है दैट इज एकमन ट्रांसपोर्ट। तो ये देखिए कैसे मूव करता है वो, इसको बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझिए। देखिए दिस इज द विंड डायरेक्शन, राइट, और ये सरफेस करंट मूव कर रही है, दिस ये सरफेस करंट है। अब क्या होगा कि ये विंड डायरेक्शन जो मूव कर रही है बिकॉज ऑफ दिस विंड डायरेक्शन देयर इज फ्रैक्शनल फोर्स इस सरफेस करंट पर लगेगा, और इस बिकॉज ऑफ दिस फ्रैक्शनल फोर्स ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ मूव करने को। बट इसके परपेंडिकुलर विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर
कोरियोलिस फोर्स काम करेगा। बिकॉज ऑफ दिस कोरियोलिस फोर्स एंड दिस फ्रैक्शनल फोर्स देयर इज अ रिजल्टेंट फोर्स, जो हमने अभी समझाया, इस पर वर्क करेगा और इस सरफेस करंट 45 डिग्री पर मूव करेगी। इट में बी लेस देन 45 डिग्री, सो इन आइडियल कंडीशन इट इज 45 डिग्री, बट अर्थ पे कुछ भी आइडियल कंडीशन नहीं होती, तो इन रियल कंडीशन ये लेस देन 45, 30 एंड 35 अबाउट 40 डिग्री ये डिफ्लेक्शन होता है। तो क्या होगा अभी, अब देखिए, ये जब ये सरफेस करंट मूव करना स्टार्ट कर देगी तो ये सरफेस करंट जो इसके नीचे वाली लेयर है इसको एनर्जी देगी। बिकॉज अब सपोज करिए ये ऐसे मूव कर रही है सरफेस करंट, तो इसके नीचे जो है इस पर फ्रैक्शनल फोर्स काम करेगा। अब क्या करेगा, जो ये लेयर है इस सेकंड वाली लेयर के, ये क्या तुम्हारा विंड का तरह काम करेगी, ये विंड के अकॉर्डिंग फ्रैक्शनल फोर्स होगा। अब इसके परपेंडिकुलर कोरियोलिस फोर्स काम करेगा, क्योंकि ये इसको फ्लो करने की कोशिश करे, इसको कोरियोलिस फोर्स वर्क करेगा, तो इसको परपेंडिकुलर लाइन, तो इसके बीच में एक बैलेंस एग्जिस्ट करेगा। तो जो सेकंड लेयर है वो कुछ इससे एंगल बनाते हुए 45 अबाउट 45 डिग्री या लेस 45 ये इधर को मूव करने लगेगी। उसके बाद क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस लेयर, ये लेयर मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो ये लेयर आल्सो डिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि तब ये वाली लेयर इसको विंड की तरह काम करेगी और सेकंड इस पर कोरियोलिस फोर्स इधर डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये उसका बैलेंस डिफ्लेक्ट करेगी, बैलेंस एग्जिस्ट करेगा, तो 45 डिग्री अबाउट लेस देन 45 डिग्री मूव करेगा। अब देखिए उसके बाद ये सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ, ऐसे मल्टीपल लेयर। अब क्या होगा, जब एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर हो रही है तो नीचे आते आते एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, तो नीचे की लेयर की स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। तो एरो की जो लेंथ इज शोइंग द वेलोसिटी ऑफ द वाटर कॉलम, तो जितनी जिसकी एरो की लेंथ है वो ज्यादा फास्टर मूव कर रहा है। अब देखिए एक लाइन होगा कि ये विंड डायरेक्शन से जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ता जाएगा, राइट। तो डिफ्लेक्शन एंगल अब देख रहे होंगे कि नीचे की लेयर पे जब कोरियोलिस फोर्स कम काम करेगा, बिकॉज जब स्लो स्पीड, हमें बताया था कोरियोलिस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे और उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। तो नीचे स्पीड स्लो होगी तो नीचे डिफ्लेक्शन जाहिर सी बात स्लो होगा, बट एक लाइन है लिखी होगी कि नीचे जाते जाते डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ता जाता, वो इसलिए बिकॉज जब दिस विंड फ्लो, विंड डायरेक्शन से ये एंगल बढ़ता जाता है। तो क्या होगा, ये 45 डिग्री से ज्यादा 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, और एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जस्ट अपोजिट विंड डायरेक्शन पे करंट फ्लो करने लगेगी नीचे, बट उसकी स्पीड इज वेरी लेस, बहुत नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि नीचे आते आते एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। तो इसको जो पूरा अगर मिला देंगे देयर इज ए स्पाइरल क्रिएट हो जाएगा। ऐसे इसको 3D में अगर बनाएंगे तो स्पाइरल बन जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कॉल्ड एकमन स्पाइरल। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक मॉडल दिया, दैट इज एकमन स्पाइरल मॉडल। सो इसमें हमने क्या देखा कि विंड के 45 डिग्री बनाते हुए सरफेस करंट डिफ्लेक्ट करेंगी और नीचे जाते जाते एनर्जी कंज्यूम होती जाएगी। डिफ्लेक्शन एंगल नीचे जैसे डेप्थ के साथ डिफ्लेक्शन एंगल इंक्रीज करेगा और ये लगभग 100 मीटर तक ही रहता है, अबाउट 150 इन सम टाइम। सो नीचे नीचे आते एनर्जी डिक्रीज करती जाएगी, लेयर्स की वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी। जो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो कोरियोलिस फोर्स भी वर्क करना इस पर स्लो हो जाएगा। और दूसरी चीज, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब विंड डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट एक करंट फ्लो करने की लगेगी, राइट। सो इसको अगर हम एक जर्नल में, फिर क्या होता है कि छोटे छोटे लेयर्स में अलग अलग डायरेक्शन फ्लो करता रहता है, फिर एक एवरेज फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड एकमन ट्रांसफॉर, व्हिच इज फ्लोइंग फ्रॉम द विंड डायरेक्शन टुवर्ड द 90 डिग्री। सो परपेंडिकुलर मोशन होता है विंड डायरेक्शन के एवरेज वाटर मास, दैट इज कॉल्ड एकमन ट्रांसपोर्ट। एकमन स्पाइरल इज अ multiple layer of motion, multiple water column of layers motion, that is Ekman spiral model in the form of a spiral. That is because of this spiral, this is called Ekman spiral model. And because of these layers, there is average movement of water or surface current toward the 90 degree from the wind direction, that is called Ekman transport. So ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि Ekman transport क्या होता है, ये कैसे मूव करता है। अभी यहाँ देखिए ये विंड डायरेक्शन है, ये 45 डिग्री मूव करेगा, नीचे की लेयर एंगल डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ये 45 है, ये 90 है, फिर 120 हो जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। एक सिचुएशन आएगी कि इसके जस्ट अपोजिट मूव करेगी नीचे की लेयर
और इसकी देख रहे हैं लेंथ घटती जा रही है, तो ये क्या होगा, ये स्पीड इसकी नीचे नीचे कम होती जाएगी जैसे नीचे, बिकॉज ऑफ द कंज्यूम ऑफ एनर्जी। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है डाउन वेलिंग एंड अप वेलिंग बिकॉज ऑफ दिस एकमन स्पाइरल। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अब ये देख रहे हैं कि नदर्न हेमिस्फेयर किस तरह का डिफ्लेक्शन होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में किस तरह का डिफ्लेक्शन होता है। हम अपवेलिंग डाउन वेलिंग में अभी उसको हम समझेंगे। अच्छा, हम समझेंगे कि अपवेलिंग डाउन वेलिंग जो होती है हमारे कोस्टल एरियाज में या कहीं भी, तो बिकॉज ऑफ दिस एकमन स्पाइरल ये अपवेलिंग डाउन वेलिंग कैसे होती है, हाउ टू इफेक्ट दिस अपवेलिंग डाउन वेलिंग बिकॉज ऑफ दिस एकमन स्पाइरल मॉडल। तो अभी हम इसको समझेंगे। सपोज दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द इक्वेटर and this is the pole. So suppose in case of this is the east, this is the west, and this is the north, and this is south. So suppose in case of east, what happened? Suppose wind flowing from equator to pole, ऐसे ये wind flow कर रहा है। So what happened? We are talking about northern hemisphere. So northern hemisphere, when wind flowing from equator to pole, what happened? Because of this Ekman transport, Ekman spiral, there is some kind of deflection toward the right side of the wind flowing. So इसकी तरफ एक deflection होगा ऐसे। So because of this deflection, what happened? Water mass accumulate toward the east coast of the oceanic surface. So अभी क्या होगा, जब यहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इधर की तरफ वाटर अकुमुलेट होता जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे डाउन वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। अब यही हम अगर बात करें, ये विंड पोल से इक्वेटर की तरफ जब चल रही हो, सेम सिचुएशन में अगर विंड पोल से इक्वेटर की तरफ चल रही हो तो इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा, राइट। क्योंकि अब हम ऐसे देखेंगे तो ये राइट साइड इधर होगा हमारा। तो अभी क्या होगा कि वाटर इधर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। दिस वॉइड क्रिएट होने की वजह से नीचे का वाटर ऐसे वर्टिकल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो नॉर्मली व्हाट इज द डाउन वेलिंग एंड अप वेलिंग? दिस इज द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द वाटर। सो डाउन वेलिंग वर्टिकल मूवमेंट टुवर्ड द below of the ocean surface and upwelling from the below and toward the surface. So this is the vertical motion from deep side to surface, that is called upwelling. So this is the northern hemisphere condition. Now we will discuss southern hemisphere condition. So in southern hemisphere, सपोज विंड इक्वेटर टू पोल चल रही है तो क्या होगा, अब इधर राइट होता है डिफ्लेक्शन, तो इधर की तरफ डिफ्लेक्शन होगा, राइट। अब इक्वेटर से पोल चल रहा है, इधर की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, सॉरी लेफ्ट की तरफ, इस साइड में क्या होगा, लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा ऐसे। तो जब लेफ्ट की तरफ होगा तो इस कोस्ट में क्या हो जाएगा, अपवेलिंग सॉरी डाउन वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अगर यही सपोज करिए विंड तुम्हारा पोल से इक्वेटर की तरफ ऐसे फ्लो करेगी तो लेफ्ट साइड मूवमेंट हो जाएगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा, दैट इज अपवेलिंग हो जाएगा। सो हमने क्या देखा कि अपवेलिंग कम होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब विंड इक्वेटर से पोल की तरफ चल रही हो, तो हमारा ईस्टर्न साइड क्या होगा, जब विंड इक्वेटर से पोल की तरफ चल रही हो तो ईस्टर्न साइड हमारा डाउन वेलिंग होगा। जब पोल से इक्वेटर तरफ चल रही हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो यहाँ अप वेलिंग होगा, राइट। इन रिवर्स कंडीशन इन सदर्न हेमिस्फीयर। सो आई होप you learn about the